بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی۔ میں محمد غوث الاعظم تجوید کلاس میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں ہم ادغام کے قاعدے کو سمجھیں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم یا اور واو کے ساتھ کچھ ایگزامپلس کو سمجھے تھے۔ انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں ہم میم اور نون کے ساتھ کچھ ایگزامپلس کو سمجھیں گے۔ پہلے قاعدہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یومین کے حروف یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کو ان حرفوں کے ساتھ ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب ہم نون ساکن تنوین کا ادغام میم کے ساتھ کچھ ایگزامپل سمجھیں گے۔ دیکھیں، نون ساکن تنوین کے بعد یا واو میم نون آئے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ان لیٹرز کے آواز میں ہم مدغم کر دیں گے، یعنی مرج کر دیں گے۔ اس کو ہم ادغام کہتے ہیں۔ اب ہم ایگزامپلس کرتے ہوئے اس چیز کو سمجھیں گے۔ آئین نون زبر ان۔ اب جب بھی نون ساکن تنوین ہو تو چیک کرنا ہے کہ نیکسٹ لیٹر کیا ہے۔ تو یہاں ہے میم، سو یہ حروف یرملون میں سے ہے میم۔ سو ہم ڈائریکٹ میم کو آئین سے ملائیں گے اور نون ساکن کی آواز کو میم مشدد میں مدغم کر دیں گے، یعنی مرج کر دیں گے۔ یہی ہمارا قاعدہ تھا کہ جب نون ساکن تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی لیٹر آئے تو نون ساکن تنوین کی آواز کو ان لیٹرز کی آواز میں ملا کر پڑھنا ہے۔ ملا کر پڑھنے کا مطلب کہ جو میم مشدد ہے، نون مشدد ہے، اس میں ان کی آواز کو مدغم کر دینا۔ اب ہم ہجے کریں گے اس کو۔ آئین نون میم زبر ام، میم نون زبر من، ام من۔ پھر دیکھیں ام من، اس طریقے سے۔ جب ہم میم آئے گا نون ساکن کے بعد ادغام کریں گے تو نون ساکن کی آواز ظاہر نہیں ہوگی، اس کی آواز مل جائے گی میم مشدد میں۔ اس کو ادغام کہتے ہیں۔ اس تفصیل کو یاد رکھیں۔ نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ ایگزامپل۔ واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، حمزہ نون زیر ان۔ اب ہمارا رول کیا ہے؟ جب بھی نون ساکن تنوین آئے گا تو نیکسٹ لیٹر چیک کرنا ہے۔ تو ہم ظاہر سی بات ہے میم کے ساتھ ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں، تو یہاں میم ہے، سو ہم اس کو ڈائریکٹ اس میم کو حمزہ کے ساتھ ملا لیں گے۔ یا نون میم زیر ام، میم تا پیش مت، تا میم پیش تم، مت تم۔ اگر ملا کو پڑھیں گے ولا ام مت تم، ولا ام مت تم۔ اب یہاں دیکھیں ام، یہ ام میں جو میم مشدد سے ہم ملا رہے ہیں غنہ کے ساتھ ام کر کے، اس میں اس نون ساکن کی آواز مل جائے گی۔ اس طرح ملا دینے کو ہی ہم ادغام کہتے ہیں۔
इसको कब मिलाना है ये नून साकिन तनवीन की आवाज़, ये नून साकिन तनवीन के बाद या वाव मीम नून आए तो गुन्ना के साथ इदगाम होगा, और लाम और रा आए तो बग़ैर गुन्ना के इदगाम होगा। इन चीज़ों की तफसील पिछले वीडियोस में आ चुके हैं। इंशाअल्लाह आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू। लाम दो पेश लुन, रसूलुन। मगर बाजू में लेटर चेक करना है, मीम है यहाँ, तो तनवीन नून साकिन के बाद मीम आ गया तो इदगाम होगा गुन्ना के साथ। सो हम इस मीम को, मीम मुशद्दद को डायरेक्ट लाम से मिला लेंगे। लाम मीम पेश लुम, रसूलुम। मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मिनल। लाम खड़ा ज़बर ला, हा ज़ेर ही, मिनल्लाही। अब देखिए ये अभी सबक हम कंप्लीट नहीं हुए। जब भी अल्लाह का नाम आता है अल्लाह, इस लाम के आगे जो लेटर है अगर इस पे हरकत ज़बर की है, पेश की है, तो इस अल्लाह ताला का इस्म है लाम, इस लाम को मोटा पढ़ना होगा। इस कायदे को याद रखें। इंशाअल्लाह आगे जाके हम इसको भी समझेंगे, मगर अब ज़िम्नन में यहाँ आ गया तो बता दिया। अब पूरा मिलाकर पढ़ेंगे। रसूलुम मिनल्लाहि। अब इसको भी समझे, अगर बारीक पढ़ेंगे तो कैसा होगा, मिनल्लाहि, मिनल्लाहि। फ़र्क देखिए, इस तरीके से फ़र्क करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। सॉद जेर सी, रा अलिफ ज़बर रा, सिरा। यहाँ ता दो ज़बर तन है, नेक्स्ट लेटर मीम है, इसलिए हम इसको गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे। तो मीम ज़बर तम, सिरातम। मीम सीन पेश मुस, ता ज़बर ता, मुस्ता। क़ाफ़ या ज़ेर क़ी, मुस्तक़ी। मीम दो ज़बर मन, मुस्तक़ीमन। अब हम पूरा मिलाकर पढ़ेंगे। सिरातम मुस्तक़ीमन। जब भी आखिर में दो ज़बर की तनवीन होती है तो हम रुकाने के वक्त इसको मद की तरह खींच के रुकाना है। ये वफ़्क़ के कायदे में हम समझेंगे। अब और एक बार हम इसको मिलाकर पढ़ते हैं। सिरातम मुस्तक़ीमा। इस तरह रुकाना। उम्मीद करता हूँ आप इस कायदे को समझे होंगे। इंशाअल्लाह अब हम नून साकिन तनवीन का इदगाम नून के साथ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ देखिए पहला फ़मन नकसा, इसको हम हिज्जे करेंगे। फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून ज़बर मन, मगर यहाँ नेक्स्ट लेटर है नून। सो जब भी यरमलून से कोई लेटर आता है नून साकिन तनवीन के बाद, तो हम गुन्ना के साथ इसको मिलाकर पढ़ेंगे। अब हिज्जे कैसे करना है। मीम नून, नून ज़बर मन, फ़मन। नून ज़बर ना, काफ़ ज़बर का, न का। सा ज़बर सा, न का सा। फ़मन नकसा। अब यहाँ दो नून है, एक्चुअली तीन नून है। फ़मन में नून है, तजदीद वाले नून में भी दो नून होंगे।
जब भी कोई लेटर आता है तजदीद का वो 2 लेटर्स का साउंड देता है, 2 बार पढ़ना होता है, मगर हम सिर्फ 2 ही बार यहाँ पढ़ रहे हैं। ये जो नून साकिन मीम के साथ लगा है इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे, इसको हम इस तजदीद वाले नून में मिला दे रहे हैं, इसी को हम इदगाम कहते हैं। तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हुरूफ आए तो वो यरमलून का जो हुरूफ है, लेटर है, उसमें इस नून साकिन तनवीन की आवाज़ को मिला देना, उसको प्रोनाउंस किए बगैर डायरेक्ट इस यरमलून के हुरूफ को प्रोनाउंस करना, इसको हम इदगाम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आप समझे होंगे। एक बार देखें, फमन नकसा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, मीम नून ज़ेर मिन, मगर यहाँ नेक्स्ट हमें जो है लेटर नून है, सो गुन्ना के साथ इदगाम होगा। मीम नून, नून ज़ेर मिन, नून ज़बर ना, मिन ना। अब यहाँ बा या ज़ेर बी, या 2 ज़ेर इन, नबीयिन। यहाँ जब भी या मुशद्दद होगा तो यहाँ नबरा होगा। या मुशद्दद और वाव मुशद्दद को हम कुछ हाईलाइट करके पढ़ेंगे, इसी को हम नबरा कहते हैं। नबीयिन, 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 इस तरीके से। अब पूरा मिलाकर पढ़ेंगे, मिन नबीयिन, मिन नबीयिन, इस तरह। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइन अलिफ ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, आमी, लाम ज़बर ला, ता 2 पेश तुन, आमिलतुन। के बाद 2 पेश की तनवीन के बाद नून आया है, इसलिए हम यहाँ गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे। तो इसका कैसे करेंगे, ता नून पेश तुम, नून अलिफ ज़बर ना, आमिलतुन ना, सौद सी, बा ज़बर बा, नासिबा, ता 2 पेश तुन, नासिबातुन। पूरा मिलाकर पढ़ेंगे, आमिलतुन नासिबातुन। इस तरीके से यहाँ इदगाम के साथ गुन्ना करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौ मा, हमज़ा ज़ेर ई, यौ मा ई, जिन होगा, मगर यहाँ नून होने की वजह से नेक्स्ट लेटर, तो हम यहाँ गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे। अब इस नून मुशद्दद को डायरेक्ट हम जाल से मिला लेंगे और इस 2 ज़ेर की तनवीन को हम इस नून मुशद्दद के आवाज़ में मर्ज कर देंगे, मुदगम कर देंगे, इसी को हम इदगाम कहते हैं। जाल नून ज़ेर ज़िन, यौ मा इज़िन, नून अलिफ ज़बर ना, आइन ज़ेर ई, नाई, मीम ज़बर मा, ता 2 पेश तुन, नाइमातुन। अब हम मिलाकर पढ़ेंगे, यौ मा इज़िन नाइमातुन। फिर देखें, यौ मा इज़िन नाइमातुन। उम्मीद करता हूँ मैं ये मीम और नून के साथ इदगाम के एग्जाम्पल्स को आप समझे होंगे। इंशाअल्लाह आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में इस खैर को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।